स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओर्धदेखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु। ओम शांति। सुप्रभात 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 बधाने सुप्रभात। खूब सरस सर, खूब सरस प्रवीण भाई, परमार साहेब, जंती भाई। अरे वाह, आज पूरे डॉक्टर साहेब બધા ભાઈ ભાઈ જ છે એમ ને? છે વાહ, તો કેવી રહી ઊંઘ આવી બધાને? બરાબર ચાલે બરાબર। વાહ ભાઈ વાહ। પણ 1 મિનિટ બધા લેટ હતા આજે, કેમ એમ? બધા 1 અને 2 મિનિટ લેટ છે ને, એ આખા દિવસમાં જોવા જાવ ને તો આગળ બધી મિનિટો લેટ થાય તો છેલ્લે તમે છે ને જમવા છે ને રાતના અડધો પોણો કલાક લેટ થઈ જાવ। કોશિશ કરો કે 1 મિનિટ અર્લી કરો તો તમને જે જોઈએ છે ને એ 1 મિનિટ વહેલું મળે તો જે આવતા મહિને મળવાનું છે ને એ આ મહિને મળી જાય। વાહ, કલ્યાણમસ્તુ। તથાસ્તુ। ધન્યવાદ તમે ધ્યાન દોર્યો બદલ। કોક વાર થાય, અન્ડરસ્ટુડ, પણ હમણાં કેટલા વખતથી જોઈ રહ્યા છે 4-5 વખતથી બધા લોકો 2 મિનિટ 3 મિનિટ પછી સ્ટાર્ટ થાય। અરે આ શું થઈ રહ્યું છે? તો ચાલો કાલથી બધા
આજથી પ્રતિજ્ઞા લઈએ 2 મિનિટ પહેલા જોઈન્ટ કરવાનું બધા. 2 મિનિટ નહીં, પ્રતિજ્ઞા લઈએ, નક્કી કરીએ. હા 2 મિનિટ નહીં, ખાલી એટલું જ સમજજો. 8 વાગવામાં 59 થાય ને એટલે બટન મારવાનું, બસ. ઓલા આબુ વિચારવાનું કરવું. 59 થાય ઓકે અને 7:55 થાય એટલે એક જગ્યાએ સ્થાન બેસી જવાનું. એક જગ્યાએ સરસ બેસી બાળ ઓળી I'm ready. ફ્રેશ થઈ આઈ એમ રેડી. આઈ એમ રેડી ટુ ગો. પેલા લોકો શું કરે ખબર છે? ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થવાની હોય ને ફ્લાઇટ, એ લોકો કાઉન્ટિંગ કરે 5 4 3 2 1 રોકેટ ઉપડે. આપણું રોકેટ 8 વાગે ઉડી જાય, બરાબર? પણ ડોક્ટર સાહેબને તો વાળ ઓરવાની જરૂર જ નહીં પડે ને. ડોક્ટર સાહેબ તો ખાલી આમ કરીને આવડી જાય. મારે બી એમ જ છે સર. હા, અમારા લોકોને તો કાંસકા મારવા પડે હરખી રીતે, વાળ કાળા કરવા પડે. જયંતિભાઈ જેવું થોડી છે પૂરા વાઇટર લઈને મસ્તીથી ચાલ્યા કરીએ, યંગ મેન જેવા. અરે વાહ, કાંતિભાઈ આવી ગયા. કાંતિભાઈ તો અધૂરું જ છે, અડધું થી આમ ને અડધું થી ફૂલ. 50-50. 50-50. આવી Thank you, 50-50. થેન્ક યુ 50-50. अभी वाह, चलो तो यात्रा आज मैं जो सिखाने जा रहा हूं, આજે હું તમને આપવા જઈ રહ્યો છું એ એવી વસ્તુ આપવા જઈ રહ્યો છું કે હીલિંગના ફ્રીક્વન્સીના કોહરન્સની સાથે તમે જ્યારે કરો ત્યારે એક વસ્તુ નવી ચેક કરો. અને એ ચેક શું કરવાની છે? અત્યાર સુધી તમે બધા લોકો એમને જ લેતા હતા, બરાબર? અત્યાર સુધી તમે બધા એમને જ ફ્રીક્વન્સી લેતા હતા. આજે તમને એક નવું રહસ્ય ખોલવા જઈ રહ્યો છે. અને રહસ્ય કેવું છે? શ્વાસોની સાથે તમારે ફ્રીક્વન્સીને સેટ કરવાની. અને એ વખતે તમારા જો તમને રહસ્ય ખબર પડી જાય તો તમે જે ધાર્યું છે ને એ તમારી સમક્ષ આવીને ઉભરી જાય. તો આજનું અસાઇનમેન્ટ છે, આ કેવી રીતે કરવાનું છે આ વિડીયોના માધ્યમથી હું તમને આગળ કહેવા જઈ રહ્યો છું. સમજીશું, જાણીશું. ડોક્ટર સાહેબ, બેકગ્રાઉન્ડ બધા માઇક બંધ દેજો, વચ્ચે અવાજ ના આવવો જોઈએ. नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस गूढ़ रहस्य में जिसे जानकर ऋषि मुनि अमरत्व को प्राप्त हुए थे. हम बात करेंगे शरीर के उन 3 अदृश्य मार्गों की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की. पर आज का रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के जागरण का रहस्य, वो शक्ति पथ जो सो जाने पर इंसान को साधारण बना देता है और जो जाग जाए तो वही मनुष्य देवत्व को छू लेता है. कहा जाता है जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है. आपका मन असीम शांति में डूब जाता है और आपका हर विचार हकीकत में बदलने लगता है. आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस रहस्यमयी नाड़ी को जागृत करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, फिर वो सफलता हो, चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, या फिर चाहे आप धन दौलत यश मान प्रतिष्ठा ही पाना चाहते हो, या आप अपना आत्मिक विकास करना चाहते हो, सब प्रकार का विकास आप सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से संभव कर सकते हैं. अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझें. जब यह जागृत होती है तो अपार ऊर्जा का संचार होता है. हमारी सोई हुई क्षमता जाग जाती है. यह जागरण कोई चमत्कार नहीं है जो सिर्फ हिमालय के साधुओं के लिए है. यह कोई भी प्राप्त कर सकता है जो आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार होता है.
योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी साधनाएं से हम इस सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। थोड़ा सा जेमस्टोन का लॉजिक आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब कभी जेमस्टोन प्रमोट नहीं करता है सर। आपको पता है लाल किताब में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कोई भी महंगे उपाय करने की जरूरत। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सके और इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले तो आप इन 3 नाड़ियों के विज्ञान के बारे में जानिए कि कैसे ये नाड़ियों हमारे शरीर में कार्य करती हैं। आप इस अस्तित्व में जहां भी देखेंगे आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। फिर चाहे आप प्रकृति में देखें, शरीर में देखें, मन में देखें, हर जगह आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी और वो चीज है जला। यानी हर चीज आपको 2 में नजर आएगी, जैसे कि अंधकार और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, दिन और रात, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये जोड़ा न केवल बाहर प्रकृति में बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद होती है। वो जोड़ा है चित्त शक्ति और प्राण शक्ति के रूप में। शरीर और मन के रूप में हमारा जो चित्त है वो ईड़ा नाड़ी के कारण और जो प्राण है वो पिंगला नाड़ी के कारण संचालित होते हैं। हमारी नाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं जिसे हम नासिका बोलते हैं। जब हमारी सांस दाई नासिका से खुलकर चलती है जिसे हम दाया स्वर भी बोलते हैं तो इसका मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब हमारी सांस बाई नासिका से खुलकर चलती है जिसे हम बाया स्वर भी बोलते हैं तो इसका मतलब ईड़ा नाड़ी जा रही हो। तो इसका मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है। हर एक घंटे में हमारी नाड़ी बारी बारी से बदलती रहती है। कभी ईड़ा तो कभी पिंगला नाड़ी चलती है। मुख्यतः ये 1 घंटे के लिए एक नाड़ी चलती है, लेकिन जब ईड़ा नाड़ी बदलती है तो दोनों के बीच में 2 से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। यानी कि तब हमारी नाक के दोनों स्वर खुलकर चल रहे होते हैं। हमारी जो डार्क का पॉजिटिव पोल है ईड़ा, हमारी चंद्रमा की शक्ति है और पिंगला हमारी सूर्य की शक्ति है। क्योंकि ईड़ा के अंदर सूर्य की गर्माहट मौजूद है तो इसकी तासीर गर्म होती है और पिंगला से हमारी शारीरिक शक्तियां संचालित होती हैं। ईड़ा नाड़ी हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम आराम कर रहे होते हैं या विश्राम कर रहे होते हैं, और पिंगला हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम क्रियाशील होते हैं। हमारी ईड़ा नाड़ी दिन के समय में ज्यादा सक्रिय रहती है क्योंकि इस समय हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब ईड़ा नाड़ी दोनों आपस में संतुलित हो जाते तब एक तीसरी शक्ति का जन्म होता है। उस तीसरी शक्ति का नाम है सुषुम्ना शक्ति। उदाहरण के लिए जब आप माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ें तो अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव करंट को यानी 2 विद्युत की विपरीत धाराओं को एक साथ आपस में मिलाते हैं तो उससे उत्पन्न शक्ति से आप भारी से भारी मशीनें भी चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम शरीर और मन की ताकत को यानी ईड़ा और पिंगला को संतुलित कर देते हैं तो तीसरी शक्ति यानी सुषुम्ना की शक्ति जागृत होती है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ईड़ा हमारी प्राण शक्ति है, तो इन 2 शक्तियों के मिलन से जो तीसरी शक्ति पैदा होती है वो हमारी आत्म शक्ति कहलाती है। आप इन तीनों ऊर्जा को इससे भी समझ सकते हैं कि डार्क हमारी एनर्जी का न्यूट्रल चार्ज है। इसके अलावा डार्क ऊर्जा है और सुषुम्ना हमारी कॉस्मिक ऊर्जा है। तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है वो तो सीमित है, लेकिन जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो असीमित है। साथ ही हमारी ईड़ा नाड़ी हमारे दाएं और बाएं ब्रेन को एक्टिव रखती है और संचालित करती है, लेकिन जो सुषुम्ना की शक्ति है वो एक साथ पूरे ब्रेन को एक्टिव रखती है तथा हमारी सभी कर्मेंद्रियों को, सभी शारीरिक अंगों को, सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को भी एक साथ संभाल सकती है। सुषुम्ना नाड़ी का एक कार्य यह भी है कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है
तो वो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही ऊपर की ओर प्रवाहमान होती है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को एक प्रकार का राजपाट भी बोला जाता है। हालांकि हमारी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों भी मूलाधार चक्र से ही जागृत होती हैं। लेकिन जब मूलाधार चक्र से चलती हैं तो वो दाएं और बाएं कर्व लेते हुए चलती हैं। आप इन 3 नाड़ियों से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है। सबसे पहले पिंगला नाड़ी, यानी कि यदि आपका सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है या आप सूर्य नाड़ी से ज्यादा प्रभावित व्यक्ति हैं, तो आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे। आप ऐसे कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगती है, यानी कि जिसमें शारीरिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये फिजिकल एनर्जी है। ऐसे में आप अच्छे एथलीट हो सकते हैं, अच्छे हार्ड वर्कर हो सकते हैं। अधिकतर जो पुलिस और सेना के व्यक्ति होते हैं वो सूर्य नाड़ी से ही प्रभावित व्यक्ति होते हैं। कहते हैं कि कोई एक नई आदत सीखने में 21 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ 4 घंटे में आपकी। उसी तरह यदि आपके अंदर डार्क विचारों से, चिंतन से, सोच विचार से, बुद्धि से ज्यादा जुड़े हुए हैं और आप थोड़ा अंतर्मुखी भी होंगे, तो आप विचारशील हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं या फिलोसोफर हो सकते हैं। ये तो पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी के 2 विशेष अलग अलग कार्य हुआ। अब हम आगे जानते हैं कि जिनका सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा संचालित होगी तो वो कैसे होंगे। हालांकि ये नाड़ी बहुत कम लोगों में एक्टिव रहती है। अधिकांश लोग इड़ा और पिंगला नाड़ियों में ही रहते हैं। कुछ खास किस्म के लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उन्हीं लोगों में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव हुआ तो आप एक अच्छे साधक हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं या ज्ञानी हो सकते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचि हो सकती है। आप एक अच्छे ऋषि मुनि अथवा साधु संत हो सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 3 प्रमुख नाड़ियों क्या है। इसलिए अब आपको यह देखना है कि आपको इन तीनों में से किस नाड़ी में जाना है। जनरली हम पहले 2 नाड़ियों में ही होते हैं, यानी इड़ा और पिंगला में। लेकिन जब आपको इड़ा और पिंगला नाड़ी सफलता नहीं देती, तब जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने ये बताया, सुषुम्ना नाड़ी जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा प्रभावी होती है, ऐसे व्यक्ति साधु संत हो सकते हैं। लेकिन आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए समाज से अलग होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप समाज में रहते हुए भी इस नाड़ी को जागृत कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। हमारी हर एक घंटे में ईड़ा नाड़ी चलती है, फिर 2-4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटे के लिए पिंगला नाड़ी चलती है। तो बारी बारी से ज्यादा टाइम तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही चलती रहती है। लेकिन जब आप साधना के द्वारा तथा अपने व्यवहारों के द्वारा अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपको सुषुम्ना नाड़ी का फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यदि आपके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ेगा तो आपको पता कैसे चलेगा। इसका संकेत ये है कि जब आपकी नाक की दोनों नथुने से श्वास की धाराएं खुलकर चलने लगे अधिक से अधिक समय तक, तो इसका मतलब आपका सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इससे मनचाहा फल कैसे प्राप्त होता है। होता क्या है कि जब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गहराई तक नहीं जाती। यानी हम सिर्फ बुद्धि तक की सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। जिस तरह हम ज्ञान तो बहुत लेते हैं साधु संतों से, किताबों से, लेकिन अपने जीवन में उससे बदलाव नहीं ला पाते। इसलिए जब तक आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं, तब तक आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ आपके माइंड तक ही सीमित रहती है। उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी तो आपका ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देगा। यानी कि जो भी आपने सीखा होगा उसी अनुसार आपका जीवन भी परिवर्तित होना शुरू जाएगा। तो सुषुम्ना का पहला लाभ यह है कि यह आपके जीवन में इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, और यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं रहता, आपका अनुभव भी बनना शुरू हो जाता है। हम ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सहायता करे, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जिस सोच में कामे इच्छाओं में सिर्फ हमारा ही फायदा हो, दूसरे का फायदा ही ना हो, तो इसका मतलब हम अभी भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से ही अपना कार्य कर रहे हैं, और इसलिए ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता। लेकिन यदि हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में तथा हमारी इच्छाओं में सबका फायदा सम्मिलित हो, तो ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। क्योंकि जब आप अपना फायदा न सोचकर बाकी पूरी दुनिया का या अपने आसपास के लोगों का फायदा सोचते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, तो आप सुषुम्ना नाड़ी को अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। और आपको जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू होगी तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे, आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाने में आपकी सहायता करेंगे। अगर कुछ बुरे लोग मिलेंगे भी तो वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि ताकि आपको कोई सीख दे सके। ईड़ा से हमें जो भी सफलता मिलती है वो टेम्परेरी होती है या एक लिमिट में होती है। जैसे कि अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो आप अपना जीवन 203 साल उसी में बिताएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत करके उसके मार्ग पर चलते हैं तो आपकी जो भी सफलता मिलेगी, एक तो वो परमानेंट होगी और दूसरा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि आप एक विशाल सफलता के द्वार को अपने जीवन में ओपन कर सकते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो आप अपना जीवन ईमानदारी से जीते हैं। आप किसी प्रकार की बेईमानी वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप ईड़ा में रहते हैं और उसके मध्य में कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बेईमानी भी आ जाती है। इसलिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी जितना ज्यादा जागृत होगी, आपकी लाइफ में उतनी ही ईमानदारी होगी, सज्जनता होगी। क्योंकि सुषुम्ना का जो मार्ग है वो तर्क का मार्ग नहीं है और ना ही वो सोच विचार का मार्ग है, वो रहस्य का मार्ग है। उसमें सिर्फ कृपा आती है। कहते हैं ना कि जिसका कोई न हो उसका परमात्मा होता है। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी तो आपके सारे कार्य बिना आपके पैसे चाहे ना भी हो तब भी पूरे होते रहेंगे। यानी कुछ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं कि जब आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी तब हो सकता है आपको गुप्त दान आना शुरू हो जाए। कई बार यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तब आपकी सांसारिक सफलताएं हो सकता है शुरू में दूर जाने लग जाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत उल्टा टाइम आ गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आप अपनी साधना कर रहे हो तो हो सकता है कि परमात्मा ही आपके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का संक्रमण काल होता है। इसमें आपकी शक्तियों को पुनर्नियोजित करना होता है। तो जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसको आपसे छीन लिया जाता है ताकि आपको नया दिया जा सके। जैसे कई बार हमें अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना होता है तो पुरानी जिंदगी को समेटना पड़ता है। और जैसे कि फोन में कोई खराबी आ जाए तो हम उसे रीसेट करते हैं ताकि उसे नए तरीके से फिर से शुरू कर सके। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हमारे परमात्मा इस प्रकार से थोड़ा कष्ट भी देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें कष्ट दे रहे हैं, जबकि लंबे समय के लिए वो हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होता है।
इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी वो प्योर एनर्जी होगी, यानी शुद्ध ऊर्जा होगी। तो उससे जो भी धन आपकी ओर आएगा वो भी सफेद धन होगा, वो आपकी एक पवित्र कमाई होगी। लेकिन जब हम ईड़ा नाड़ी में रहकर काम करते हैं और व्यवसाय करते हैं तो इससे हम अशुद्ध ऊर्जा अपनी ओर एक्टिवेट और अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ बेईमानी करने लगते हैं जिससे काला धन भी हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब आपके जीवन में काला धन आएगा तो उसके साथ बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें भी आएंगे, क्योंकि आपने जो धन आकर्षित किया है उसकी नियति ठीक नहीं होती। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके जो धन आकर्षित करेंगे वो सफेद धन प्राप्त होगा, जो अपने साथ खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी, ना कि बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें लेकर आएगी। नमक वाले 1 गिलास पानी से ही आप कुछ ही दिनों में डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। पागलपन लग रहा है? अब तक हमने सुषुम्ना नाड़ी के महत्व को जाना कि इसके जागृत होने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी अधिक से अधिक समय तक जागृत हो, या किस प्रकार हम इससे जुड़ सकते हैं? तो उसमें पहली चीज यह है कि आपको समर्पण की भावना रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपने अंदर अहंकार पाल लेंगे कि मैं खुद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपको परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, तो फिर परमात्मा भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आपको कर्ता का भाव रखना है। आपको खुद कुछ नहीं सोचना है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। आप अपने बुद्धि से जो भी सिस्टम में है वो करते रहें, लेकिन पीछे ये मानकर रखें कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, सब परमात्मा करने वाला है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। होता क्या है कि परमात्मा ने हमारे लिए सब प्लान करके रखा होता है, और जो भी हमने सोचा होता है उससे बहुत बड़ा होता है। उसके सामने हमारी सोच बहुत छोटी है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन जब परमात्मा देता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि हम अपने बारे में इतना छोटा सोच रहे थे, जबकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा सोचा हुआ था। इसलिए सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दें, वो जैसे चलाए वैसे चले। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ा रहता है और परमात्मा ही उसे बड़ा करते हैं। हम भले ही उसका लालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका छोटे से बड़ा हो जाना रहस्यमय कारण है, वो परमात्मा का ही सहयोग है। इस प्रकार जब आप समर्पण की भावना रखेंगे, आपके जीवन में जो भी जरूरतें होंगी वो खुद ब खुद जुड़ सकते हैं। जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एनर्जी मिलती रहेगी और आप रिचार्ज होते रहेंगे। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग अध्यात्म में नहीं जुड़ पाते, उनको परमात्मा से ऊर्जा नहीं मिलती और उनकी ऊर्जा गिरनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास जागृत करने में मदद करते हैं। ये प्राणायाम चित्त को शांत करते हैं और ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। साथ ही ध्यान और समाधि की प्रक्रिया चेतना को एकाग्र करती है और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करती है। कुछ विशेष आसन जैसे कि सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक के चक्रों पर ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सकता है। शक्तिपात ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है, जिससे शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। आप चाहे तो किसी सिद्ध गुरु से इस प्रक्रिया के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं।
सुषुम्ना का जागरण एक संतुलित, स्वस्थ और पूर्ण जीवन का प्रतीक है। ये ऐसे है जैसे कीमती रत्नों से भरा खजाना खुल गया हो। कल्पना करो कि पानी की एक बूंद विशाल समुद्र में मिल जाती है और अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है। यही आनंद और मुक्ति की अवस्था है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो हम इसे परम मिलन का अनुभव करते हैं। ये दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ अपनाने के बारे में है। ये उद्देश्य आनंद और पूर्णता से भरे जीवन जीने के बारे में है। इसलिए प्रिय साधकों, आंतरिक परिवर्तन की इस यात्रा को शुरू करें, सुषुम्ना को जगाएं और सफलता के असली अर्थ का अनुभव करें। मित्रों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूनिवर्स लॉगिन चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ખૂબ સરસ, અતિ સુંદર. ફ્રીક્વન્સીથી તમે કઈ રીતે આ નાડીને એક્ટિવેશન બેલેન્સ કરી શકો છો? કોઈ બતાવી શકે? કઈ ફ્રીક્વન્સી છે જે આપણને બેલેન્સ કરે છે? કઈ ફ્રીક્વન્સી? કોહેરન્સ થી અને અચ્છા, કરેક્ટ. મેન્ટલ બેલેન્સ. દિવસમાં મને એવું લાગ્યું અહીંયા સવારે તમારું બોડી એકદમ બેલેન્સ હોય, આરામ કરીને તમે ઊભા થયા હોય, આખી રાત સુઈને ઉઠ્યા હોઈએ, ત્યારે આપણે ચક્રાસની ગતિની ફ્રીક્વન્સી લઈ લેવી જોઈએ. દિવસમાં બધે દોડધામ કરી હોય, બધા અવાજ આવ્યા હોય, બધાની વાતો સાંભળી હોય, એટલે આપણે સેલ્ફિશ થઈ જઈએ છીએ, મારું તારું કરતા હોઈએ. જ્યારે મારું તારું કરતા હોઈએ એક ક્ષણ પર અગર કોહેરેન્સ કરી દેવામાં આવે તો ફરી પાછો એક ચમત્કાર થઈ જાય. જ્યારે ચક્રાસની ફ્રીક્વન્સી તમે કહો, હાજી, ચક્રાસની ફ્રીક્વન્સી તમે જે કહો છો એ બ્લુ એપ થી લેવાની કે કેવી રીતે લેવાની? સરસ સવાલ કીધો છે. ચક્રાસમાં સવારે વાયરથી રૂટ ચક્ર એક્ટિવેટ કરવાનો. ઓકે, સવારે રૂટ ચક્ર સવારે એક્ટિવેટ કરો એટલે તમારા નીચેથી આગ ઉપર સુધી જાય, ચેતના બોડીને પાવર મળે. બરાબર. અને મધ્યંતર આવે છે ત્યાં આપણે એને કોહેરેન્સ કરી દઈએ. મધ્યાંતર 12:39 મધ્યાંતર વિજય મુહૂર્તનો મધ્યાંતર છે. આ મારું અંદાજ મૂકી રહ્યો છું, શું છે ખબર નથી, પણ આ બધું મને નીકળી રહ્યું છે અત્યારે. બરાબર. તો એ વખતે એક્ટિવેશન ચાલુ કરીએ અને એનો અનુભવ જોઈએ. 12:39 કોહેરેન્સ એ પહેલા જમી લીધેલું હોવું જોઈએ. જમી લીધું હોય તો ઓર્ગન જે છે સિસ્ટમમાં બેલેન્સ થઈ જાય, એને શ્વાસની પ્રાણ ઉર્જા પૂરી મળી જાય. તો એ રીતે એક પ્રયત્ન કરાય. બીજી કોહેરેન્સ જ્યારે સંધ્યા થવાનો સમય હોય 5 વાગે ત્યારે એક વખત આપણે લેવાય. અને ત્રીજી કોહેરેન્સ એક ટ્રાય કરો રાત્રે 10 વાગે લો. 5-5 કલાકના અંતરાલમાં એક દિવસનો અનુભવ કરજો અને પછી શેર કરો કેવી રીતે. આ ટાઈમિંગ જે બતાવ્યા ને, ટાઈમિંગ જોજો, એ દિવસ કેવો ગયો
એ ચેક કરવાનું. પૈસાથી માંડીને, રિલેશનશિપથી માંડીને, કોન્ફિડન્સથી માંડીને, નવા કોન્ટેક્ટથી માંડીને, અંજાન લોકોનો ફોન આવી જવો, ફરી પાછો એની સાથે વાતચીત કરી, બિઝનેસના પ્રપોઝલ, આ બધું જ. અને તમારી ડાયરીમાં, એક નાની ડાયરીમાં લખો શું તમને રૂટ ચક્ર કેટલા વાગે લેવાનું? હા રૂટ ચક્ર કેટલા વાગે લેવાનું? સવારે મોર્નિંગમાં બીજું? એકદમ જ 5 વાગે. સૂર્યોદયનો સમય હોય ને, સૂર્યોદયનો સમય ત્યારે. અચ્છા. બીજું ભજ્ય સાહેબ, હમ ખાંસી માટે કયો પ્રોગ્રામ લેવો જોઈએ? તેના માટે ખાંસી ઓરા કાઢીને જુઓ ખાંસી કેમ આવે છે, ખબર પડી જશે. થોર ચક્ર લેવાનું. થોર ચક્ર. આની ખાંસીની વાત કરો છો? આની ખાંસી એક જ હા. છે. સવારે ઉઠે એટલે મેં એને કીધેલું કે સવારે ઉઠ્યા પછી મોબાઈલને અડવાનું નહીં, નાયા ધોયા વગર. હા ભાઈ, અને મેં એને કીધેલું ઘી 1 ચમચી સવારે ગરમ પાણીની અંદર બનાવીને પીએ, ચા પીવી એની અંદર નાખી દેવાનું 1 ચમચી. ટોન્સિલના હાર્મોનીની જગ્યાએ એના બ્લડ સેલના સવારના પોરમાં જ્યારે આપણા બ્લડ સેલ ઠંડા અવસ્થામાં હોય ત્યારે લોહીના કણને એનર્જીની જરૂર હોય. મોબાઈલ તમે વાપરો સવારમાં એટલે તમારા બોડીના એનર્જીને એ ડ્રેન કરી દે, ડ્રાય થઈ જાય. અને જ્યારે ડ્રાય થાય તો બોડીની અંદર લિક્વિડની જરૂરત હોય છે. એ ડ્રાયનેસને કારણે તમારી ખાંસી શરૂ થાય. ખાસ કરીને શિયાળામાં બધા લોકોની રિક્વેસ્ટ છે ઓઇલનો યુઝ કરવો. ક્લિયર થયું? તમારે તો સ્કિન એકદમ ડ્રાય થઈ શિયાળામાં. હા, તો તમારે સવારે મોબાઈલનો ઉપયોગ તમે ઓછો કરો. મોબાઈલનો ટાઈમિંગ નક્કી કરો. 11 વાગ્યા પછી ઉપયોગ કરવો જોઈએ મોબાઈલનો, અને અધરવાઇઝ બપોર પછી. સવારે એક્સરસાઇઝ, વોકિંગ, આ બધી પ્રક્રિયાઓ મોબાઈલ વધારે. થી મોબાઈલ વગર તો કેમ ચાલે? મોબાઈલ તો લેવું જ પડે ને સવારમાં. ના, એવું કશું છે નહીં. તમે ડાયરી લખો, નોટપેન લઈને બેસો. નોટપેનની જરૂર છે. પછી શરીર નહીં ચાલે, મોબાઈલ નહીં ચાલે તો શરીર નહીં ચાલે. કેમ કે મોબાઈલની અંદર રેડિયેશન તમારા બોડીના સેલને ડ્રાય કરે છે, ડ્રાયનેસ કરે છે. જરૂરત હોય એટલું જ યુઝ કરો ને. એકદમ કરેક્ટ. તમે જે બોલ્યા મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પણ સીમિત જેવો કરવો જોઈએ. શિયાળામાં વધારે કેમ એમ થાય? ઇવન હું પોતે અત્યારે મોબાઈલ વાપરવાનો હોય ને તો એને સ્ટેન્ડ ઉપર મૂકું છું, ટેબલ અલગ કરી દીધું. રેડિયેશન માટે મારો રેડિયેશન સતત લેપટોપ પર ચાલતું હોય. બધું દૂર રાખવાનું, હાથ અડાવવાનો નહીં. સ્પીકર પર રાખું જો છું. આ સવારની પ્રક્રિયા એ શું છે? હા, લખવાની પ્રક્રિયા. હા, બરાબર છે. હા, એટલે મોબાઈલ નહીં જોવાનો, ફ્રીક્વન્સી ચાલો. મને તો પાછળ ફ્રૂટ્સ દેખાયા, ફ્રૂટ્સ દેખાયા. હા, એટલે મેં કહું આ સવાર સલાડ લઈને બેઠા છે. ટેબલ ક્લોથ છે. હા, તો હા, ખરેખર સરસ છે. અને પછી ધ્યાન અવસ્થામાં બેઠો, નાડી ચેક કરો. બંને નાક ચાલુ થઈ ગયા ને, બંને નાક હવા આવે છે, મતલબ કે સુષમા નાડી શરૂ થઈ ગઈ છે. એ વખતે જે જોઈએ છે ને દેખો, એ વખતે કોહેરન્સ હોવી જોઈએ. બરાબર. ઓર એને પાવર આપશે. બીજો એક ઉપાય, પબ્લિક કાર્ય કરો. કેટલા ઘરમાં હિલી પહોંચાડવું એ કામ વિચારો. કેટલાને એક્ટિવિટી કરું એ વિચારો. બાકી જ્ઞાન લઈને કરવાથી કઈ નહીં થાય. બહુ વિડીયો જોવાથી કઈ નહીં થાય. મેં તો નક્કી જ કરી દીધું. હા હા, સમજી ગયો પ્રકાશભાઈ, તમારું બરાબર છે. બાકી બધાનું જોવાનું, તમારે એકલાનું નહીં. બીજાને એક્ટિવેટ કરો. તમારા એ સત્કાર્યની અંદર બધાને સામેલિત કરો, તો જ થશે. બાકી સેલ્ફમાં રહેતો તો કશું નહીં થાય. જયારે બીજાને મદદરૂપમાં થાવ છો, ગ્રેટિટ્યુડમાં આગળ વધો છો, તો જ તમારો એક્ટિવેશન પાવર વધશે.
તો આજના માટે એટલું જ.